ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਏਪੀ ਸਿੰਘ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਏਪੀ ਹਸਪੀਟਲ ਅਤੇ ਹਾਰਟ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਤੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਜਲਦੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਰੋਨਰੀ ਆਰਟਰੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਰਟ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦੇ ਬਲੌਕੇਡ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਹੁਣ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵੈਸਟ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ। ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਰੋਨਰੀ ਆਰਟਰੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾਲੀਆਂ ਬਲੌਕ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ। ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਵਰਲਡ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਅਧਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਦਾ ਲੈਵਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਟ੍ਰੈਸ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂਟਲ ਸਟ੍ਰੈਸ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰੈਡੀਮੇਡ ਮਿਲੇ, ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਨਾ ਪਵੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਮਿਲੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਿਲੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਟਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਤੋਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂਟਲ ਸਟ੍ਰੈਸ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਆਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੋਟਾਪਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਟਾਪੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸੂਲਿਨ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨਸੂਲਿਨ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਿਵੇਂ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਸੂਲਿਨ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਘਾਤਕ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਡਾਇਬਟੀਜ਼, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਮੋਟਾਪਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ, ਮੈਂਟਲ ਸਟ੍ਰੈਸ, ਸਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਦਲਾਵ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਾਈਪ 1 ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਨਾਂ ਸੱਜੇ ਦੇਖੇ, ਬਿਨਾਂ ਖੱਬੇ ਦੇਖੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੇ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਰਮੋਨਸ ਨੂੰ ਉਤਪੰਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜੋੜ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਸਿੰਡਰੋਮ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਦਾ ਜਮਾਵ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਮਾਵ ਜਦੋਂ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲ ਨੂੰ ਖੂਨ ਮਿਲਣਾ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਲੌਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀ ਦਰਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਟੈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਗਿਰਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸੰਗੀਨ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਡਨ ਕਾਰਡੀਅਕ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹ ਕਾਫੀ ਰਿਸਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਚਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਾਅ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਇਕੱਠ ਫਿਰ ਅਖੀਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਜੈਨੇਟਿਕਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀਨਸ।
अगर बहुत छोटी उम्र में हार्ट अटैक देखा जाए, जिस तरह तुसीं कहा कि 20-22 साल की उम्र में भी हार्ट अटैक देखने को मिल रहा है, मैं बिल्कुल मनदा वां कि 20-22 साल की उम्र में भी साडे कोल अजकल हार्ट अटैक के पेशेंट आते हैं। ये पिछे उन्हां दा जिहड़ा जीन्स ने, जो उन्होंने माँ बाप तो मिले हुए उन्होंने जीन्स ने, वो कुछ हद तक हुंदे ने, और उन्होंने विच मोटापा, शुगर, ब्लड प्रैशर, जो यह चीज़ां भी नाल रल जांदियां ने, कोलेस्ट्रॉल नाल रल जांदे ने, तो सगों यह बीमारी बहुत जल्दी उम्र विच भी एकदम प्रभाव पा दिंदी है। हार्ट अटैक साडे कोल समझण दी गल है वे कि 2 तरीक़िਆਂ नाल पहुँचता है मरीज़, और उस तरीक़िਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ समाज ਵਿੱਚ एजुकेट करना चाहिए ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ कि इस तरीके नाल ਸਾਨੂੰ समझ आएगी कि यह हार्ट ਦਾ ਸਾਨੂੰ परेशानी आने वाली है। ये पहला तरीका होंदा है कि ਜਦੋਂ दिल की बीमारी क्रॉनिकली वधदी है, यानी आहिस्ता आहिस्ता वधदी है, हौली हौली वधदी है, और एक दिन इस तरह रूप लैंदी है कि वो एकदम वड्डी होकर अटैक के रूप में मरीज़ नूं हस्पताल पहुँचाती है। इस मरीज़ नूं जरूरी तौर के उत्ते बीमारी दीयां निशानियां मिलनियां शुरू हो जांदियां ने, तो वो निशानियां की ने कि उन्होंने एंजाइना होने लग जाता है। सब तो पहले उन्होंने छाती दे विच कुछ एवें दी दर्द होना जो तुरन दे उत्ते या भारी काम करन दे उत्ते, पौड़ियां चढ़न दे उत्ते, या वो काम करन दे उत्ते जिहदा वो आदी नहीं है, उदों उन्होंने दिल की जगह दे उत्ते, छाती दे उत्ते, पूरी छाती दे विच फैलाव किया हुई दर्द हुंदी है। ये दर्द जिहड़ी है दोनों बाहां विच भी जा सकती है, खास करके खब्बी बांह विच, कदी पिठ विच भी जा सकती है, इत्थों तक कि गर्दन और जबाड़े तक भी आ सकती है। खास करके इस दर्द की पहचान यह हुंदी है, जिन्होंने असीं एंजाइना पैक्टोरिस कहते हैं, उसकी पहचान यह हुंदी है कि जदों मरीज़ कोई भारी काम करता है उदों ही हुंदी है, जदों वो आराम कर लैंदा है या वो बैठा या कोई काम नहीं कर रहा हुंदा तो वो दर्द उन्होंने परेशान नहीं करती। इत्थों यह निशानी मिलनी शुरू हो जाती है कि दिल नूं खून की घाट तो है, लेकिन वो घाट इन्नी नहीं है कि बैठे बैठे भी उन्होंने खून ना मिले, पर घाट उदों उत्पन्न हो जाती है जदों वो कोई भारा काम करता है। इत्थों उन्होंने अलर्ट हो जाना चाहिए है कि मैनू एंजाइना है। इस मरीज़ नूं अगर सही टाइम के उत्ते डॉक्टरी उपचार मिल जाए या वो फर्दर टेस्ट होकर पता लगाया जा सके कि यदि दिल की नाली किन्नी को तकलीफ, किन्नी को वधी हुई है, किन्नी को बंद है, किन्नी को उहदे विच क्लॉट है, तो उस बंदे नूं टाइम रहंदे उहदा इलाज हो सकता है। ये तो वो मरीज़ ने जिन्होंने असीं क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना कहते हैं, और हौली हौली है किसी दिन अनस्टेबल होके ते या मायोकार्डियल इन्फाक्शन जिन्होंने असीं हार्ट अटैक कहते हैं उहदे रूप विच पहुँचते हैं। इन्हां दे कोलेस्ट्रॉल वधे हुंदे ने, इन्हां नूं ब्लड प्रैशर हुंदा है, इन्हां नूं शुगर भी हो सकती है, इन्हां नूं मोटापा भी हुंदा है, इन्हां दे नाल नाल इन्हां नूं नवीं बीमारी जिहड़ी आपां कहने आ कि हौली हौली एंजाइना हो रहा हुंदा है, साह भी नाल चढ़ रहा हुंदा है, त्रेली भी नाल आ जाती है। कदी कदी जदों वो कोई एवें दा काम करते हैं तो वो महसूस करते हैं कि सानू ये सारे सिम्पटम्स आ रहे हैं। जिवें जिवें बीमारी वधदी है उवें उवें घट काम करन दे उत्ते भी ये निशानियां दर्शान लग जांदियां ने, यानी कि उन्होंने घट काम करन ते भी दर्द होने लग जाएगी। यदा मतलब है कि नाली की ब्लॉकेट थोड़ी वध गई है, हुण उन्होंने थोड़ा खून होर घट गया है। ऐसे स्थिति में मरीज़ नूं अगर डॉक्टरी उपचार या सही टेस्ट, जिवें कि मैं दसांगा कि किहड़े-किहड़े टेस्ट करके पता लगाया जाए तो इन्हां दा पूरा इलाज हो सकता है। चाहे उन्हां मैडिकल ट्रीटमेंट किया जाए, चाहे उन्होंने ਉਹਦੀ एंजियोग्राफी करके ਉਹਦੀ नाली की ब्लॉकेट चैक की जाए और समय रहंदे ਉਹਨੂੰ खोल दिता जाए तो मरीज़ बिल्कुल रहिंदी जिंदगी तक अगे परहेज करते हुए, दवाई खाते हुए खुशहाल जिंदगी बतीत कर सकते हैं। दूसरे तरीके नाल मरीज़ वो होंदे ने जिहड़े बिना किसी अलर्ट होने तो, बिना किसी निशानी तो, अचानक बिना किसी पहली निशानी तो कि उन्होंने तकलीफ है या नहीं, और वो अचानक हार्ट अटैक के हस्पतालों में पहुँचते हैं। ऐसे मरीजों को जबरदस्त छाती च दर्द होंदी है, बांवां च जाती है, पिठ च जाती है, जबाड़े च जाती है, त्रेली पसीना हो जाते हैं, और उन्होंने ब्लड प्रैशर घट जाता है, धड़कन डिस्टर्ब हो जाती है, और वो बिल्कुल दूरों ही समझ आ जाते हैं कि इन्होंने हार्ट अटैक आ गया। तो वो हार्ट अटैक वाले मरीज़ नूं की करना चाहिए है, उस मरीज़ में जरा जिन्नी भी डिले नहीं करनी चाहिए। उन्होंने जरूर किसी ना किसी इस तरह की जगह पर जिन्होंने मदद मिल सकती है जो नेड़े तो नेड़े भी होवे, तो मदद भी उत्थे उन्होंने हार्ट की मिल जाए, हार्ट का डॉक्टर अवेलेबल होवे, उत्थे हार्ट का ICU अवेलेबल होवे, उत्थे एक इंजैक्शन लगाने की सुविधा होवे जिहड़ा अगर समय ते लग जाए तो दिल की नाली खुल जाए, या उत्थे एंजियोग्राफी की सुविधा होवे, या उत्थे स्टेंट पाने की सुविधा होवे। उस तरह दी सारी सुविधावां वाले हस्पताल में जल्दी तो जल्दी पहुँचा के समय बचाते हुए, क्योंकि समय बचिया तो दिल बचिया, जो समय ना बचिया तो दिल नहीं बचिया, ऐसे लोगों को जिन्नी जल्दी हो सके
उपचार वास्ते मरीज़ नूं जल्दी तो जल्दी हस्पताल पहुँचना चाहिए है। इन्हां लोगों को समय नहीं हुंदा, बल्कि जिहड़े पहले वाले मरीज़ मैं दस्से जिहड़े क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना वाले कोल काफ़ी साल हुंदे ने, कई महीने हुंदे ने, पर उन्हां नूं पता नहीं हुंदा कि किहड़े दिन उन्हां दा इह काम दूसरे रूप विच परिवर्तित हो जाना है। सो क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना वाले पेशेंट्स नूं भी अपनी केयर करते हुए अपना इलाज समय ते करा लेना चाहिए है। तो जिन्हों किते हार्ट अटैक आ ही जाए बिना किसी पहली निशानी तो उन्होंने तो बिना समय गवाए हस्पताल च पहुँच के जो जरूरी इलाज है वो करना चाहिए है। स्टेबल एंजाइना के पेशेंट जिहड़े असीं पहले दस्से सी स्टेबल ने, इन्हां दी प्रॉपर टेस्टिंग हुंदी है जिहदे विच असीं ECG तो शुरू करके फिर TMT करके देखते हैं, जिहदे स्ट्रैस करके देखते हैं, उस तो बाद उन्हां दी इकोकार्डियोग्राफी करते हैं। इन्हां टेस्टां विच कोई चीरफाड़ नहीं है, कुछ नहीं है, उत्तों उत्तों हो जाते हैं। इहदे तो सानूं पता लग जाता है कि ये जिहड़ा साडा मरीज़ है इहदी रिस्क कैटेगरी की है। अगर यदि रिस्क कैटेगरी लो रिस्क कैटेगरी है तो यह मरीज़ बहुत अच्छे दवाइयां ते भी ठीक किए जा सकते हैं। लंबे समय तक दवाइयां दा शुगर का कंट्रोल, ब्लड प्रेशर का कंट्रोल, कोलेस्ट्रॉल दीयां दवाइयां, दिल दीयां नालियां नूं खोलण वालियां दवाइयां, जिन खास करके स्टैटिन्स जिन्हों आपां कहने आ, उन्हां दवाइयां नूं यूज़ करके असी लंबे समय तक इन्हां मरीज़ां दी जिन्नी को नाली बंद है उन्होंने उत्थे दी उत्थे रख सकते हैं, या हौली हौली उन्हां नूं आराम आंदे होए वो नाली हौली 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 खुलती भी जाती है और लंबे समय तक ये बंदे बिना किसी प्रॉब्लम तो जीवित रह सकते हैं। लेकिन अगर यह हाई रिस्क कैटेगरी में डिटैक्ट होंगे ने जिहदे दिल की नाली के 90% तो ज़्यादा बंद होने की आशंका होवे, इस तरह के मरीजों को असी एंजियोग्राफी वास्ते सलाह देने। जो एंजियोग्राफी के उत्ते पता लग जाता है कि किनियां नालियां बंद ने और किनियां बंद ने, किन्नी % बंद ने, उहदे आधार के उत्ते असी अगर एक या दो नाली बंद होवे या एक या दो जगह तो बंद होवे तो उन्हां दे विच छल्ला रख के स्टेंट रख के उन्हां दा इलाज अच्छे तरीके नाल कर सकते हैं और आने वाली जिंदगी उन्हां दी वधिया बिना किसी प्रॉब्लम तो दवाइयां ऑफकोर्स लैंदे हुए चलती रहती है और ठीक रहती है। लेकिन अगर नालियां तीनों ही बंद होन, बहुत बुरी तरीके नाल बंद होन, खास करके शुगर के मरीजों में नालियां बहुत ज़्यादा बंद होंदियां ने, उहदे विच 5, 7, 8 जगह तो भी बंद हो सकती है, या नाली पूरी दी पूरी ही ब्लॉक नज़र आती है, ऐसी स्थिति में स्टेंट भी उहदा इलाज नहीं है। ऐसी स्थिति में फिर उन्हां लोकां नूं बाईपास करवाना पैंदा है, जो कि एक बाईपास का ऑपरेशन हुंदा है, उन्हां वास्ते वो इलाज है। सो मेरे कहने का मतलब है वे कि कोई भी एक इलाज सारे मरीजों वास्ते नहीं है तो सारे मरीजों वास्ते कोई एक इलाज नहीं है। स्टेंट ही इकल्ला इलाज नहीं है, कुछ लोगों को दवाइयां ही बेहतर ने, कुछ लोगों को स्टेंट की जरूरत है, कुछ लोगों को बाईपास की जरूरत है। अगर कोई हार्ट अटैक में आया है तो उस वेले उन्होंने इलाज की लोड़ है, अगर उन्होंने उस जगह के उत्ते स्टेंट की सुविधा नहीं है तो एक इंजैक्शन है जिन्होंने असीं स्ट्रेप्टोकाइनेस कहते हैं, बहुत सस्ता होंदा है, 1.5-2 हज़ार रुपए का टीका होंदा है। वो कुछ महंगे वर्जन भी आते हैं जिमें मेटालाइज वगैरह, वो 40,000 रुपए का होंदा है, पर जरूरी नहीं होंदा। इन्हां विचों सस्ते वाले भी वरते जा सकते हैं, यूरोकाइनेस, स्ट्रेप्टोकाइनेस। वो टाइम रहिंदे अगर पहले 6 घंटिया में मरीज़ पहुँच जाए तो कई बारी उन्होंने इंजैक्शन लगाने नाल स्टेंट तो भी बेहतर या स्टेंट के बराबर भी फायदा हो जाता है। सो यह सारी गल इस गल ते निर्भर करती है कि मरीज़ किस डॉक्टर को पहुँचा है, किस हालात में पहुँचा है और वो अपनी कंडीशन की है तो उहदियां बीमारी की किस तरीके की तादाद है। इस करके मेरी सब तो पहली सलाह तुहानूं सारिआं नूं एजुकेशन वाल है वे कि सही डॉक्टर का चुनाव और यह पता लगा के डॉक्टर दसे कि किहड़ा इलाज तुहाडे वास्ते बेस्ट या उपयुक्त है, उही इलाज उस मरीज वास्ते फायदेमंद होंदा है। सो सारे ही इलाज हैगे ने, दवाई तो शुरू होके, इंजैक्शन तो शुरू होके, स्टेंट तक जाके, बाईपास तक जाके, ये सारे इलाज ने। लेकिन ये सारे इलाज हर मरीज वास्ते नहीं है। किस मरीज वास्ते की इलाज है इसका सही फैसला हार्ट के डॉक्टर, हार्ट का स्पैशलिस्ट अपनी सारी जिहड़ी उहदे वास्ते जो जानकारी है उन्होंने यूज़ करता होया तो मरीज नूं हालात नूं देखते हुए वो फिर उस वेले सलाह बनती है कि की करना चाहिए। मेरा समाज वास्ते एक कोई उपराला है कि समाज दिल दीयां बीमारियां दी जानकारी हासिल करे, उहदे बारे जागरूक होवे, उन्होंने ना होने वास्ते असीं अपने समाज नूं इस तरीके नाल तैयार करिए कि उन्हां विच दिल दीयां बीमारियां दी कमी आवे, दिल दीयां बीमारियां दी कमी कट कर करा उन्हां च घटाव आवे,
ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਠੀਕ ਰੱਖਣ, ਅਗਰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰੱਖਣ, ਅਗਰ ਮੋਟਾਪਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਅਗਰ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਵਧੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਪਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਣ, ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਨ 'ਚ ਰੱਖਣ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਔਰ ਰੈਗੂਲਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਔਰ ਸਹੀ ਖਾਣ ਪਾਨ ਦਾ ਚयन ਕਰਨ ਔਰ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਚੁਣਾਵ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ।